So in the previous video we have studied about the health, and I have explained you what is good health and bad health. So today we are going to start the new topic, that is healthcare in India. In this we'll study why healthcare is needed in India, and do we all have this kind of facilities in India. So the first is that need for the healthcare. क्या ज़रूरत है healthcare की? So to prevent and treat illness. To prevent and treat illness means, for example, like diarrhea, dengue, malaria is there. These kind of diseases are there. So if we and our government will take precautions for that in advance, so we can prevent from those kind of diseases, है ना. अगर हम उन सारे डिजीज़ के लिए पहले ही प्रिवेंट ले लें हम और हमारी गवर्नमेंट, तो हम एक तरीके से एक प्रिवेंट करते हैं अपने आप को उस बीमारी से बचने के लिए. अगर इफ सम हाउ वी गॉट इल, सो टू गेट अ प्रॉपर ट्रीटमेंट वी रिक्वायर हेल्थ केयर. सो next is we are required to have facilities such as health laboratories for testing, ambulance services, blood bank, etc. So to have a proper healthcare center we are required to some facilities. And what are those facilities? Such as health centers, hospitals, laboratories for testing. So health center किस लिए? जब हमें हल्का फीवर होता है या हम we feel dizzy, so हम डायरेक्ट हॉस्पिटल तो नहीं जाते ना, we go to the doctor for checkup. So those are known as health centers. And if we have some serious problems और कोई ज़्यादा disease है, हमें कोई injuries है, so at that time we used to go for the hospitals. And laboratories किस लिए होती हैं? For टेस्टिंग. जैसे हमारा यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है और बाकी सारे टेस्ट होते हैं, वो कहाँ पे डन, वो सारे टेस्ट कहाँ पे होते हैं? वो सब होते हैं लेबोरेटरीज में. फाइन. नो व्हाट एल्स वी नीड? एम्बुलेंस सर्विसेज, ब्लड बैंक एक्सेट्रा. एम्बुलेंस सर्विसेज क्यों चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि कई लोगों के पास व्हीकल नहीं होता है, दे आर नॉट एबल टू take their patient from one place to another, so in that condition ambulance is required. Fine. And blood banks, why blood banks are required? Because of सप्लाई ऑफ ब्लड. कई बार होता है ना कि ब्लड की कमी होती है पेशेंट को, तो ब्लड डिमांड होता है, तो विद द हेल्प ऑफ ब्लड बैंक्स दे कैन टेक द ब्लड फॉर द पेशेंट. In order to run such facilities, we need health workers, nurse, qualified doctors and other health professionals. Now, if we need to run these kind of things, ना जो facilities बोली थी मैंने, क्या क्या facilities हैं बताया था मैंने, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, लैबोरेटरीज. अब उन्हें रन करने के लिए भी लोग चाहिए. क्या कौन कौन है वो लोग? वर्कर्स हैं जो वहाँ पे काम करते हैं, है ना, हेल्थ सेंटर्स को मेंटेन करने में, डॉक्टर्स की हेल्प करने के लिए. नर्सेज जो पेशेंट को हेल्प करती है, जब डॉक्टर बता देता है कि ये करना है वो करना है, तो वो टेक्स केयर आफ्टर दैट, आफ्टर डॉक्टर, नर्स ना. सो क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर मीन्स एजुकेटेड, उनको पता होना चाहिए स्पेसिफिक चीज़ के, स्पेसिफिक प्रॉब्लम के बारे में कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए ये हमारा ये इसका इलाज ये है. सो वी नीड क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल. और बाकी प्रोफेशनल लाइक क्या होता है, हमारी फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, और हमारे इसका बॉडी स्कैन करने के लिए, एक्सरे मशीन वगैरह करने के लिए, ईयर्स में प्रॉब्लम्स होता है उसके लिए. सो वी नीड all the qualified peoples to run these kind of facilities, right? We also need the medicines and equipment that are necessary for treating patient. Now we are having these kind of facilities that we required. Now we also have the people who need to run these kind. Now what else we need? We need medicines and equipment. Now we need medicines. Medicines क्यों? अगर जब किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, डॉक्टर्स उसको क्या देगा? कोई जादू टोना तो नहीं बताएगा, तो क्या प्रिस्क्राइब करेगा? ही विल प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स टू क्योर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज, है ना. एंड ऑल्सो ही नीड्स दैट पर्टिकुलर डॉक्टर नीड्स इक्विपमेंट दैट ही कैन check the patient that what kind of problem he is having in his body. Fine. So medicines and equipments are necessary for treating a patient. So we need health care for these kind of purposes. Now next is, do we have all this? Now क्या हमारे पास ये सब चीज़ें हैं? In India, we have a huge public health care system. It has the ability to look after the health of the last section of its population. Now, what is saying? It's saying that हमारी जो public care की
सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ज़्यादा सिस्टम है। क्या है उसमें कि उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, लार्ज सेक्शन में डिवाइड होके अपनी पॉपुलेशन को चेक कर सकता है ना. दे कैन ट्रीट देयर पॉपुलेशन इन द लार्ज सेक्शन. हैव अ लुक on the following data. Now with the help of data I will explain you. So with the help of this data I'll explain you. This data is given in your book. When you will get your book, so you can see this data in your book. Fine. So what it's saying that India has the largest number of medical colleges in the world and is among the largest producers of doctor. मतलब जो हमारा इंडिया है वो क्या है, लार्जेस्ट नंबर के मतलब मेडिकल कॉलेजेस हैं वो हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा है. और जो हमारे इंडिया में जो डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स बनते हैं. अप्रॉक्सीमेटली 15,000 न्यू डॉक्टर्स क्वालिफाई एवरी ईयर. नाउ हर साल हमारे यहाँ से कितने 15,000 डॉक्टर्स निकलते हैं का पास आउट होके. नाउ healthcare facilities have grown substantially over the years. Now अब जो हमारी healthcare facilities है वो हर year क्या होती है, बढ़ती है. In 1950 there were only 2,717 hospitals in India. अब 1950 में क्या था, सिर्फ 2,717 हॉस्पिटल्स थे हमारे इंडिया में. In 1991 there were 11,1704 hospitals. और 1991 में कितने हॉस्पिटल्स हुए, 11,017,400 hospitals. And in 2000 the number grew to 18,218. और 2000 तक क्या हो गया, ये पुराना सर्वे रिकॉर्ड है, 2000 तक हमारे जो नंबर्स थे हॉस्पिटल्स के वो कितने हो गए, 18,218. India get a large number of medical tourists from many countries. Now what is the meaning of medical tourist है, मेडिकल टूरिस्ट मतलब जो बाहर से अपना ट्रीटमेंट कराने आते हैं. लाइक यूएसए में है तो यूएसए में ऑब्वियसली बात है कि जो ट्रीटमेंट होगा वो महंगा होगा, तो क्या करते हैं वहाँ से बाहर से वो यूएसए से आके हमारे इंडिया में आके ट्रीट कराते हैं, क्योंकि इंडिया में कम होगा. सो दे कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज टू इंडिया फॉर गेटिंग अ मेडिकल treatment. So they are known as the medical tourist. Fine. They come for treatment in some of the hospitals in the India that compares with the best in the वर्ल्ड. अब वो जो यहाँ पे ट्रीटमेंट कराने आते हैं जिन हॉस्पिटल्स में, वो हॉस्पिटल्स कैसे कंपेयर करे जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल्स इन द वर्ल्ड. मतलब जो हमारे हॉस्पिटल्स जहाँ पे वो ट्रीटमेंट कराने आते हैं वो बेस्ट मेडिकल्स हॉस्पिटल्स के नाम द्वारा जाने जाते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज India is the third largest producer of medicine in the world and is also a large exporter of medicine. अब हमारा जो इंडिया है वो थर्ड लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूसर है, मतलब हमारे थर्ड नंबर पे आता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेडिसिन प्रोड्यूस होती है. और जो पूरे देश में क्या करती हैं, वो मेडिसिन प्रोड्यूस करती है, एक्सपोर्ट करती है ना. So India is the third largest producer of medicines in the world and also a large exporter of medicine. मतलब थर्ड नंबर पे सबसे ज़्यादा बड़ी प्रोड्यूसर हमारी मेडिसिन यहाँ पे होती हैं और पूरे वर्ल्ड में जो मेडिसिन है वो एक्सपोर्ट भी होती हैं. सो ये तो हमारी क्या थी, गुड थिंग्स है ना, गुड फैक्ट्स थे ये तो जो हम जानते हैं. नाउ अब इनका गुड फैक्ट्स है तो समहाउ इनके बैड फैक्ट्स भी होंगे, है ना, जिस वजह से हमारी हेल्थ केयर लैक हो रही है. और व्हाट आर दोज, आई विल टीच यू. As we have studied the good facts, now we'll study the bad facts, है ना. Most doctors settles in urban areas. अब जो डॉक्टर्स हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी अच्छी डिग्रीज ले लेते हैं. नो नाउ व्हाट दे डिड, दे मूव टू द अर्बन प्लेसेस. वो क्या चले जाता है, सिटीज़ में चले जाते हैं. पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर. अब जो रूरल एरिया गाँव के लोग हैं वो ट्रीटमेंट कराने के लिए क्या करना पड़ता है, उन्हें बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है ताकि वो किसी अच्छे डॉक्टर पे जाके अपना चेकअप करा सकें. द नंबर ऑफ डॉक्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन इज़ मच लेस इन रूरल एरिया. अब जो डॉक्टर्स की जो पॉपुलेशन है इन अकॉर्डिंग्स टू रूरल अर्बन एरिया और रूरल एरिया में क्या है, वो बहुत कम है. ठीक है. सो अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर. अब हर साल कितने लोग मरते हैं,
हर साल 5 लाख लोग मरते हैं किस वजह से, ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम से. दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस, और जो ये नंबर है वो इंडिपेंडेंस से अभी तक चेंज नहीं हुआ है. Almost 2 million cases of malaria are reported every year and this number isn't decreasing. और 2 मिलियन केस हैं जो मलेरिया के, वो हर साल रिपोर्ट करते हैं, और ये नंबर जो मलेरिया के हैं वो अभी तक कम नहीं हुए हैं, वो कभी भी डिक्रीज नहीं होते हैं. We are not able to provide clean drinking water to all. Now, as I told you in the when I was explaining you what is health, तो health में मैंने बोला था ना, clean drinking water is also important for a good body and for a good health. So here we can study that we are not able to provide clean drinking water to all. अब मतलब सब लोगों को clean water जो provide नहीं हो रहा है, और जो clean water है वो क्या है, one of the most important factor of having a good health. Only 21% of all communicable diseases are वाटर बॉर्न. अब जो क्या होता है, 21% डिजीजेज होती हैं ना, जो वो किसकी वजह से होती हैं, सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से. फॉर एग्जांपल डायरिया, वॉर्म्स, एपिटाइट्स एक्सेट्रा. अब डायरिया, वॉर्म्स, ये सब पता है आप लोगों को. डायरिया भी एक डिजीज़ है, वॉर्म्स भी एक डिजीज़ है, एपिटाइट जिसकी वजह से क्या हो जाता है, खराब पानी, गंदा पानी पीते हैं तो क्या लिवर्स में स्वेलिंग आ जाती है. सो दीज आर दी डिजीज दैट हैपन्स ड्यू टू दी बैड वाटर, मतलब अनहाइजीन वाटर है ना, जो पानी पीने लायक नहीं होता, उनमें से ये प्रॉब्लम्स होती हैं. Half all the children in India do not get adequate food to eat and are undernourished. And also I have explained you in the health definition that as clean drinking water is important for the good health, same as nourished food है ना, nourished and full nutritious food is important for a good health. So you can see we are having so many of advantage है ना, हम लोगों के पास बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं. लाइक हमारे यहाँ पे हर साल 15,000 डॉक्टर्स क्वालिफाई होते हैं. वी हैव more than 20,000 hospitals and also top most hospitals in our world. But what happens? Lack of good facilities, they have to suffer. So I hope you have understood today's topic. If you have any query regarding this, you can ask me. Thank you, students.